ମା ମା ଡାକ ଡାକରେ ମାନସ ମା ମା ବୋଲି ଡାକ। ମା ନାମ ଦେବ ସରଗ ସମ୍ପଦ ଏତିକି ଭରସା ରଖ। ମଳିନତା ଯେତେ ଅଛି ରେ ମନ ତୋର ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନେ। ସବୁ ମଳିନତା ଧୋଇ ହୋଇ ଯିବ ମା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣେ। ମା ନାମ ବନ୍ଧୁ ମା ନାମ ସଖା କର ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ଧନ। ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସେହି ନାମ ହେବ ସାହା ଅବିରତ ନିଶିଦିନ। ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଆସୁନାହିଁ ପୂଜା ବିଧି। ଯଜ୍ଞ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଦାନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମା ନାମ ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆଶା ନିରାଶାରେ ମା ନାମ ହେଲେ ସାଥୀ। ଜୀବନ ଆକାଶେ ସୂରୁଜ ଉଇଁବ ପାହିଯିବ ଅମାରାତି। ଫୁଟିବ କମଳ କଳି ଚେତନାର ବିତରିବ ମଧୁବାସ। ଲୋଟିବ ପରାଣ ଆନନ୍ଦେ ଉଲ୍ଲସୀ ଲଭି ସେ ଦିବ୍ୟ ପରଶ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରଚିତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ମୃତି ଅହଂ ଓ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ ସେ ହେଉଛି ବହିର୍ଜୀବନ। ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରକୁ ରହିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଜୀବନ ଏବଂ ବହିର୍ଚେତନାକୁ ଧରି ଏ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମର ଉପରିଭାଗୀୟ ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହା କେବଳ ଏକ ଉପରିଭାଗ ମାତ୍ର ଏବଂ ସେହି ଉପରିଭାଗରେ ହିଁ ଅବିଦ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମର ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ, ଗୋଟେ ବହିର୍ଜୀବନ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବହିର୍ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଯାହାର ମୂଳ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ଅବିଦ୍ୟା କହିଲେ ମୁଁ ମୋରକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ସେଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋରକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଭେଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆସିଛୁ ବହିର୍ଜୀବନକୁ ଭେଦ କରି ଅନ୍ତର୍ଜୀବନକୁ ଯିବାକୁ, ବହିର୍ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ତର୍ଜୀବନକୁ ଯିବାକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅସଲ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଅସଲ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ଟୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ବୋଲି ମା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛୁ ଡିସ୍କଭର୍ କରିବାକୁ ଡିଭାଇନ୍କୁ, ଯିଏକି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ବହିର୍ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଏହି ଉପର ଭାଗଟି ଉପରେ ଯାହା କିଛି ଗଠିତ ଓ ରଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି
ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଅନ୍ତରାଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମ ବୃହତ୍ତର ଅସ୍ତିତ୍ୱର କେବଳ ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅତି ହ୍ରସ୍ୱ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜୀବନର ଛାୟା। ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ସେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଅର୍ଥ ସେଇଠି ରହିଯାଇଛି ବିମ୍ବ, ଏଇଠି ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ସେଇଠି ରହିଯାଇଛି ଧ୍ୱନି, ଏଇଠି ତା'ର ବହିର୍ଜୀବନରେ ଅଛି ତା'ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିମ୍ବ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିମ୍ବ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଛି। ବିମ୍ବ ଧରି ରଖିଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ, ଧ୍ୱନି ଧରି ରଖିଛି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିକୁ, ଏବଂ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଧ୍ୱନିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଭୌତିକ ଜୀବନ, ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନ ବି କହିପାରୁ। ମେଣ୍ଟାଲ ଆନିମଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଟକିଂ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ଆନିମଲ୍ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପୁଣି ଅଛି ନା ବହିର୍ଜୀବନରେ ବିମ୍ବର, ସେ ଭାତି କ୍ଷୀଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସେ ବି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗଭୀର ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ମନୋଗତ ତଥା ପ୍ରାଣଗତ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅବିଚଳ ନିତ୍ୟ ନିସ୍ପନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ପାଇବା। ମନୋଗତ ଆଉ ପ୍ରାଣଗତ ସ୍ତର ଏତେ କୋଳାହଳମୟ ଯେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ହିଁ ସାଧନା। ସେ କୋଳାହଳ ଜମା ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବତଃ। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଭିତର କବାଟ ଫିଟିବ। ମନ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତ, ସତେ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁ ତରଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ସେ ମନଭୂମି, ଆଉ ତାକୁ ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସିଏ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ବୁଲି ଆସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆହା କିବା ଅଦ୍ଭୁତ ମନର ଗତି, ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଅଟେ ତାର ଶକତି, କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ମନ କରେ ଦର୍ଶନ, ଏହି ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱଭୁବନ। ତାକୁ କୌଣସି ବାଧା ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରିଦେବ। ଏମିତି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନର ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଅଛି, ଏତେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇକି ଏତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏତେ ଫଟୋଚିତ୍ର ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ କଥା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏପରିକି ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ମନ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ସେଇ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ବା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମଣିଷ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବି ସେହିପରି। ପ୍ରାଣିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ଆହୁରି ବେଶୀ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାଣ ସ୍ୱଭାବତଃ ଚଞ୍ଚଳ, ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କିଛି ଆୟତ୍ତ କରି ନେବାକୁ, କିଛି ଝାମ୍ପି ଦେବାକୁ, କିଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ, କିଛି ଅଧିକାରଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ। ସେ ତା'ର ଜୀବନର ପ୍ରାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ ନ କଲେ ଭିତରକୁ ଭେଦ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା,
से क्रियाटी निज द्वारा पूर्णतः संभव नुहे। से निजर प्रयास करने को पड़ो जे निजक विश्लेषण करने को पड़ो जे सते मु केते मानसिक स्तर रे केते विव्रत, कहीं मु प्राणिक स्तर रे इते विचलित कहीं कहीं ना, जहाँ मो जीवनर लक्ष्य नुहे। मु आसीची एई मानंकु बरं अतिक्रम करी बा एई मानंकर सहयोग नहीं, मन प्राणर सहयोग नहीं चैत्य सत्ता को भेटिबा। तेणु एमानंकु मो हतादर न करी बरं तांक सहित बंधुता स्थापन करी तांको बुझेई सुझेई भितर को जीवी। जेतेबेले कारण जेहेतु यह आमर भितर केते गभीर रे जाई अधिष्ठित होई रही, केवल आत्मसत्तार बोधिगत बोध द्वारा ही एटी बाहरे उपरि भागरे ताहार एक आभास मात्र मिलुछि। दिव्य जीवन ग्रंथ इते मधुमय, इते अमृतमय, सेथिरे भौतिक जीवन को साधारण जीवन को किभली भावरे दिव्य जीवन रे रूपांतरित करी हबो तार मार्ग निर्देश अछि। कहउछन्ति श्री अरविंद जे एहा आमर भितरे गभीर रे जे अधिष्ठित कि चैत्य सत्ता। माँ कहउछन्ति हृदयर गभीरतम गभीरतारे चैत्य सत्ता रहिछन्ति। चैत्य सत्ता भितरे मु रहिछि, अर्थ माँ निजे रहिछन्ति। पुणी अन्यत्र माँ कहउछन्ति जे तमे भितरकू 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 आहुरी भितरकू गभीरतम गभीरता को जाओ, सेठी चैत्य सत्तार आविष्कार करिवो। तेणु ए बाहर जहाँ आम देखुचु से सब तार आभास मात्र, तार चिन्ह मात्र। असल कथाटी भितरे अछि, जहाँ भितरे सौंदर्य, आनंद, सामर्थ्य, अमरत्व यही सब कथा गुड़ाक भरी। बाहर जीवन रे जहाँ आम देखुचु, आम जहाँ देखुचु अर्थ इंद्रिय तृप्तिर कथा बाहर जीवन में देखुचु। ये तार आभास इंद्रिय मानन को दिया जाइछि ए तृप्ति पाई नुहे, बरं ताको प्रयोग करी माध्यम करी व्यवहार करी भीतर को जीवा। सेमाने सीढ़ी हवा को आसिछन्ति, छात हवा को आसी नाहंती। सेमाने माने किए? सेमाने बोले किए? इंद्रिय माने सीढ़ी हवा को आसिछन्ति, छात हवा को आसी नाहंती। किंतु आमे से मानन को छात बोली भाविछु। छात माने सर्वश्रेष्ठ स्थिति बोली आमे भाविछु। इंद्रिय को इंद्रिय दिए सुख, सुख ही जीवन, जीवनर भवितव्य ही इंद्रिय तृप्ति बोली आम भाविछु। किंतु इंद्रिय माने माध्यम हेबे हमको भीतर को जीवाको। ए विश्व प्रकृति रे आखि बहु कथा देखिबो, से देखिबा बाटरे सृष्टिर दर्शन बाटरे स्रष्टा को खोजिबा को इच्छा करिवो। कान शब्द शुणिबो, से शब्दर जो अधीश्वर तांकू से खोजिबो। जदि न खोजिला ताहले ए शुणिबा वृथा। सबु सेया ए जीभ चाखिबो, इते इते मधुर जिनस अच्छी, ताहले जी माधुर्यर स्रष्टा जे अधीश्वर से केते मधु सिक्त हेई नथिबे। एई कथा जदि न खोजिला जीभ बा मन, जीभ तो चाखेनी, मन ही मन जदि एई कथा न खोजिला दृश्य माध्यम रे, शब्द माध्यम रे, स्वाद माध्यम रे यदि न खोजिला ताहले ए सब वृथा है गला। ए बहिर्जीवन रे बंची बंची मनीष किछि
लक्ष्य हासिल करिपारला नहीं। अर्थ जे पर्यंत से डिस्कवर करना डिवाइन को से पर्यंत ताकू एमती एमती आसवाकू ही पड़ुथिबो, भ्रमिबाकू पड़ुथिबो, बात चक्र परि भ्रमुथिबो। से एमती भ्रमी भ्रमी जाउथिबो आउ आसुथिबो, क्लांत होउथिबो, क्लांति मेंटौथिबो, पुणी आसुथिबो, क्लांत होउथिबो। ए आसीबाटा कू जीवनर परिपूर्ण सार्थकता बोली मणुथिबो, कारण सेथिरे सी इंद्रिय तृप्ति को जीवनर आभिमुख्य बोली विचार करिथिबो। जेतेबेले से बुझिबो जे मोर आसीछि मु काहेकि ना चैत्य सत्तार आविष्कार करिबा पाई, सेथिपाई धन, क्षमता, जस, डिग्री, डिप्लोमा एगुड़ाकर किसी आवश्यकता नहीं। प्रत्येक जीवनर ताहा ही लक्ष्य। जेहेतु मनोगत, प्राणगत और देहगत अहंर प्रातिभाषिक अवबोध गुड़िक ताहाकू सर्वदा विकृत होबारे लागिछ। ताकू विकृत कर दउछंती अहं। मनर गोटे अहं अच्छी, जीए मन को भगवान को आड़कू बा आत्मा आड़कू बा चैत्य सत्ता आड़कू छाड़ाकू राजी नुहे। मन जमा व्यक्ति सत्ता को आमर गोटे जो अच्छी एंटिटी, पर्सनाल एंटिटी व्यक्ति सत्ता, ताकू छाड़ू नाहांती कुआड़े की भीतर को। मनर अहं से प्राणर भी अहं अच्छी, सीए मध्य छाड़ूनी। शरीर भी अहं अच्छी, सी मध्य जड़ता, आलस्य, किए जीव किए शुणव बटा भगवत कथा, किए प्रार्थना करिव। आज इच्छा होनी, देह भल लगुनि, देहर मध्य गोटे रोकीदेवार कैपासिटी अच्छी। यही कथा सब विकृत करदेबार लागिछंती। अभिप्सा को, आग्रह को, जहाँ स्वतःस्फूर्त नदी जेमती स्वतःस्फूर्त भाव में समुद्र आड़ को जाए, अग्नि जेमती स्वतःस्फूर्त भाव में सूर्य आड़ को धाए, सेमिति व्यक्तिसत्ता भगवान आड़ को जाए, स्वाभाविक भाव में जीवा कथा, जीवा को चाहे। किंतु मन प्राण शरीर रे थिबा अहं ताको छाड़ती ना। केवल मनर नैशब्द द्वारा ही यार यथार्थ सत्यटी को अनुभव करा जाई पारिबो। तो मन को नीरव न कले जमारू आग को जाई हब ना। मन को नीरव करिबा ही साधना। राजयोगर ताहा ही लक्ष्य, ध्यानर ताहा ही लक्ष्य, एकाग्रतार ताहा ही लक्ष्य। खूब नीरव अर्थ मन सबु बेले एपरी गोटे सी स्टेज जे रंगमंच जे सबु बेले किछि ना किछि अभिनय चली किछि 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 चरित्र मानकर केतेबेले से खाली पड़िबो नाही। किंतु ताकू खाली करने को चेष्टा टिके करवा दरकार। ना एगुड़ा भाविनी ना भाविनी ना भाविनी एमती चेष्टा कले बेले बेले ताहा टिके खाली हो जीव। और से खाली हवा दरकार मन नहेले जन्म जन्म धरी भीतर को जीवा संभव नुहे। एवं यार यथार्थ नैशब्द द्वारा ही बाहर कोलाहल मन को जिते अशांत करे, भीतर कोलाहल ताठू बहु गुण रे अशांत करे। बन पोड़ीगले सभी जानती, नीरवे पोड़ई मन, मन पोड़ीगले संगे संगे हुए विदग्ध विश्व भुवन। बण पोड़ीगले तो दिशिब, समस्ते जानवे, किंतु मन पोड़ीगले केही जानवेनी, किंतु सारा पृथ्वी जलीजीव। कहा पाई? जार मन पोड़ी जाइथिवो ता पाई पृथ्वी जली जाउथिवो।
किंतु अपरपक्षरे आमर उपरभागीय सत्तार गतिशील और नित्य विस्पंदित अंशगुड़िक आमे आम प्रकृतिर गभीर तले गुप्त हो रही बृहत्तर वस्तुगुड़िकर अति क्षुद्र रूपायन बोली जानिबा। तेणु जेते गतिशीलता आमर अच्छी, जेते वाक्य हो, भावना हो, कल्पना हो, चिंता हो, धारणा हो, जेते जहाँ आमर सबू बहिर्जीवन सबू बहिर्भागर कथा कहला आमर भावना आमर कल्पना सबू बाहरे बाहरे सब चली किसी भीतर आड़ को मुहाऊ नहीं। आम भावना भीतर आड़ को नहीं, आम कल्पना भीतर आड़ को नहीं, आम चिंता भीतर आड़ को नहीं, सबू बाहरे आउरी जस मिल आउरी क्षमता मिल आउरी सुस्वादु खाद्य मिल आउरी भल गीत सब शुणा केमिति मिल नानादि कथा आहुरी बाहर बाहर जेते अधिक। तेणु जो जो कथा गुड़ाक आम बाहर सब एते कथारे निजकू बड़ भाग्यवान मन करुचु, बहिर्जीवन को सार्थक करने को बा समृद्ध करने को, से गुड़ाक अति क्षुद्र कथा आत्मिक जीवन पाखरे गभीर तले गुप्त हो रही किए से ना चैत्य सत्ता ता तुलन अति क्षुद्र रूपायन ए स्वाद ए बहिर्दृश्य ये सबू हूँ ता तुलन क्षुद्र क्या ताकू देखिले आउ देखिबार किसी रहिबो नाही, कारण सबू दृश्य ठारू से दृश्य सबुठु सुंदर आउ शुणिबार किसी रहिबनी आवश्यकता सबू ध्वनिठू से अंतर्जगतर ध्वनि भारी मधुर। आम सत्तार उपरी भागरे जो स्मृति कार्य करुच्ची सेईटी मध्य बड़ खंडित और आंशिक भाव में कार्य करुच्ची और यथार्थ कार्यटीर साधन करि पारु नाही। जो स्मृति सब आमर अच्छी ए बहिर्जीवन स्मृति से मध्य आमको भीतर को नहीं पारुनी, केतेबेले टिके भीतर को नेले पुणी फेरे आणुची। अर्थ जदि कौन सी विपद आपदे पड़ला बेले रक्षा पाई जाऊचु से समय रे हुए तो से रक्षा पाइजिबा बेलर स्मृति आमको कहूची जे एहा बाय ग्रेस हैला, बाय ग्रेस ऑफ द डिवाइन आमे ए विपदरु रक्षा पाइलु। किंतु पर मुहूर्त रे पुणी से अहं बुझे दउची जेटा बाय चांस घटिला, ग्रेस बोली कहिबार प्रमाण किछि नाही कही आमको से पुणी से बागरे पकई दउची। हेले जो स्मृतिटा आमर कौनसी ना कौनसी कारणरू टिके जाग्रत करिथिला अंतर्जीवन आड़कू जीवाकू से स्मृति पुणी लिभिगला। तेणु अंतर्जीवन बा भितर को जीवाकू सुजोग मिलला नहीं। आमे जदि गोटे दिन को निरीक्षण करिबा सकाळु राति पर्यंत आमे केते भीतर कथा भाविचु, केते बाहर कथा भाविचु, आमे केते भाविचु आम जीवनर लक्ष्य, आमे केते भाविचु जे मु काहे केठिके आसीछि, आत्मविश्लेषण केते करिचु, सारा दिन बहिर्जगत रे बुलीचु, बहिर्जीवन बंचीचु, दिन परे दिन मास मास ताहा ही कटी वर्ष वर्ष बीती जाइछि। जेउठु आसीथिलु आउ टिके हुए तो जाइथिबु कि न जाइथिबु सेइठिके पुणी फेरिबाकू पड़ुछि। किछि विशेष अग्रगति हो नाही। मने होउछि बहु पैसा कमेइली, बहु क्षमता अर्जन कली, बहु आधिपत्य विस्तार कली, किंतु अलेक्जेंडरीय न्याय हला नहीं कि सबु आउ किए नेले, सबु आउ किए भोग कले, समय तांक पाई गला, शक्ति तांक पाई गला, निज पाई समय देबाकू समय मिलला नहीं।
कि निज भितरକୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ बा निजକୁ ଟିକେ आत्मविश्लेषण କରିବାକୁ ଟିକେ शक्ति ମଧ୍ୟ मिलला नहीं। सबु समय सबु शक्ति नष्ट हो गला। किए स्फीत हैला अहं बहुत रखिची है 7 पुरुष खाइबे बहुत रखी जाइए किछि से रखिबारे किछि मूल्य नहीं। निज पाई समय दिया जाई नहीं जहाँ दिया जिबा उचित। बहुत समय मिलिला दिया जाई पारि थांता। बहुत शक्ति मिलिला दिया जाइथिला बहुत शक्ति खोजिबाकु निजକୁ ହେଲା ନାହିଁ। याकू खोजी ताकू खोजी ताकू खोजी ताकू खोजी बंधु खोजी बांधव खोजी सांग खोजी साथी खोजी एइथिरे चलीगला समय। ता माने सेटा वृथा नुहे किंतु ता माध्यम रे भगवान को खोजा हैला कि खोजा हैला नहीं। क्षमता रहू क्षमता जे देइची ता प्रति नम्रता आसिला कि ता प्रति समर्पित भाव आसिला कि धन रहू धन जे देइची ता प्रति केतेबेले कृतज्ञता आसिला कि बुझी होची मो कथा। बहुत गभीर कथा बहुत गभीर कथा। एठी जमारू सन्यासर कथा नहीं। एठी बाबाजित्व कथा नहीं। श्री अरविंद का पाठ पढ़िले बाबाजित्व आसे नहीं। आसे उद्दामता जीवनर सार्थकता जीवनर महानता जे बहिर्जीवन और अंतर्जीवनर मधुर समन्वय ही पूर्ण योग। खाली बहिर्जीवन नुहे कि खाली अंतर्जीवन नुहे। आम सत्तार हाँ आम भीतर अवस्थित एक अधिचेतन स्मृति जहाँकि आम जावतीय विश्वानुभव को ग्रहण करुच्ची और लेखि रखुची आमर मन देखि नथिबा बुझी नथिबा किंबा आदम लक्ष्य करि नथिबा नाना सामग्री को मध्य ग्रहण और लिपिबद्ध करुच्ची। आम उपरिभागस्थ स्मृति अति अपटु भाव ताहारी भंडार भीतर आनी केवल अति अल्प केटा अंश को बाहर प्रकाश करि पारुछि। कले आम भितरे जो मन अच्छी तार केते प्रकारर स्मृति अच्छी। तार चेतन स्मृति अच्छी अवचेतन स्मृति अच्छी तार अधिचेतन स्मृति अच्छी। अर्थ अधिचेतन स्मृति होची चेतन स्मृतिर उपरे आउरी सूक्ष्म आउरी शक्तिशाली। अधिचेतन स्मृति मध्य मन भीतर को आसे। अर्थ भगवानकर जो बागेरे हो पछे जो तांकर चिंता तांकर भावना तांकर कल्पना ए विश्व रे जो संगठित होथिबा जो व्यवस्था से व्यवस्था प्रति रहस्यबोध विस्मयबोध एगुड़िक मनर अधिचेतन स्मृति को जाग्रत करे। अर्थ गोटे सुंदर दृश्य देखी मन प्रलुब्ध है जदि से सौंदर्यर जे स्रष्टा तांक प्रति टिके आकृष्ट हैला कवि माने हुअन्ति दार्शनिक माने हुअन्ति लेखक माने हुअन्ति से माने जोड़ी पारंती ए बहिर् सौंदर्य को तांक अधीश्वर संगरे। साधारण लोक आसंती अभिनय देखंती बादाम खाई जाती भारी। टिकिए चिंताशील लोक आसंती ड्रामा देखंती आ तार डायरेक्टर को टिके देखा करके जीव बोली चाहती। ए कोटिकर गोटे हजारकर गोटे समस्ते भावती यही माने होचन जो माने सब रोल कर अभिनय करुछंती यही माने होचन बोधे श्रेष्ठ
ୟାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରେଇଛି ନା ସେ ୟାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ନାହିଁ। ଯିଏ କହିଛି ଏଇଠି କାନ୍ଦି ପକେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେବୁ, ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ଯିଏ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଲା। ସିଏ ମାଧ୍ୟମ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା ହଉ ଛାତ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ କ'ଣ କରେ? ଯିଏ ମାଧ୍ୟମ ସେଇ ହେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ପଛରେ ଲୁଚିକିରି ଚୁପ୍ ହେଇ ଲୁସଫୁସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ସେ ଖୋଜେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଅଧିଚେତନ ସ୍ମୃତି ମାଧ୍ୟମରେ। ଅଧିଚେତନ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ମୃତି, ସାଧାରଣ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସ୍ମୃତି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜଣେ କବି ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଲେ, ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଲେ, ଆଉ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ, କିଏ ତମେ ବନ୍ଧୁ କେଉଁଠି ରହିଛ କିଛି ନାହିଁ ମୁହିଁ ଜାଣି, କାନ ପାରି କେବେ ବସି ଶୁଣି ନାହିଁ ତବ ବୀଣା ଜିଣା ବାଣୀ, ଫୁଲରେ କେଶର ରୂପେ ଶୋଭୁଅଛ ଅବା କେଶରରେ ମଧୁ, ଯହିଁ ଥାଅ ତହିଁ ଦେଖେ କି ନ ଦେଖେ ତୁମେ ମୋ ପରାଣ ବନ୍ଧୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କହିବାର ଅର୍ଥ ସେ ଅଧିଚେତନ ସ୍ମୃତି ଆଣିଦେଲା। ଗୋଧୂଳି କୁନ୍ତଳେ ତାରାଟିଏ ଫୁଟି ନଦୀ ବକ୍ଷ ଦରପଣେ, ନିଜ ରୂପ ଶୋଭା ନିଜେ ଦେଖୁଥାଏ କିବା ଭାବି ମନେ ମନେ, ରାକାର ଜନିରେ ନିଶିଥ ଗଗନେ ଶଶୀ କରେ ରାଜପଣ, ବଉଦ ସଙ୍ଗରେ କେତେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳି ହରୁଥାଏ ମନ। ସ୍ପର୍ଶକାତର ମନ ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝି ହେବନି। ସେସବୁ ସଙ୍ଗରେ ବେଳେ ବନ୍ଧୁ, ସେସବୁ ସଙ୍ଗରେ ବେଳେ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଆସି ଦିଅ ଦେଖା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତେ ସ୍ମୃତି ଚିତ୍ର ହୁଏ ଏ ଅନ୍ତରେ ଲେଖା। ଅଧିଚେତନ ସ୍ମୃତି ବୁଝି ହେଲା କି? ଏ ହେଉଛି ଅଧିଚେତନ ସ୍ମୃତି। ବଉଦ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଜହ୍ନ, ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସି ଦେଖା ଦେଉଛ, ଆଉ ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେଇ ଭିତରେ ତମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖା ଦେଉଛ ଆସି। ଫୁଲକୁ ଦେଖୁଛି, କିଏ ତମେ ବନ୍ଧୁ କେଉଁଠି ରହିଛ କେଉଁ କୁଞ୍ଜେ ଅଛ ବଢ଼ି, ରହିଛ କି ତମେ ବସନ୍ତ କୁସୁମେ ଅବା ମଧୁମାସ କଢ଼ି। ଚମତ୍କାର କବିତ୍ୱ, ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରୀତିପ୍ରବଣତା ନାହିଁ, ଏ ସ୍ନେହ ସ୍ନିଗ୍ଧତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସହଜରେ ସିଏ ବାଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱବୋଧ ନାହିଁ, ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, ରହସ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ, ସେ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଠି ଛି ପଦ ନାହିଁ। ଛି ପଦ ବୁଝି ହେଉଛି? ଏ ଜୀବନ ଛି, ଏ ସଂସାର ଛି, ଏ ଜଗତ ଛି, ଏ ଧନରତ୍ନ ଛି, ଏ ପାଠ ଏଠି ନାହିଁ। ଏଠି ଅଛି ଯେ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ତରର ଉପଲବ୍ଧି। ଏଇ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠ। ତେଣୁ ଏ ପାଠ ଅନୁରାଗର ପାଠ, ଏ ପାଠ ବୈରାଗ୍ୟର ପାଠ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଏହା ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଏବଂ ଉପକରଣ ଆଣିଦିଏ, ସେଥିରୁ ବୈରାଗୀ ପରି ସଙ୍କୋଚରେ ମୁଖ ଫେରାଇ ନିଅ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପୁଣି ଏସବୁ ଉପରେ କୌଣସି ରାଜସିକ ଆସକ୍ତି ପୋଷଣ କର ନାହିଁ। କହୁ ତ କିଏ? ପୃଥିବୀରେ କହୁ କିଏ? କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର କାରଣ ଛାଡ଼ିଦିଅ,
नहले अर्थ सबकिछि देईपारे ताको जाबुड़ी धरी रख। ये दीटा कथा श्री अरविंद आसवा आगु चली एवं चली मात्र श्री अरविंद पृथ्वी रे प्रथम पृथ्वीर जिते दर्शन अच्छी प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन भितर प्रथम जी कहले बैरागी परिमुख फेराई निय नाही धन पाई अन्य बागरे पुणी ता प्रति आसक्ति प्रकाश करना अर्थ मझीरे गोटे बाट अच्छी अनुरक्तिर बाट जहाँ माँ श्री अरविंद प्रथम फिटेले ए समग्र विश्व समक्षरे। तेणु अधिचेतन स्मृति होची ताहा जो स्मृति बहुत टिके उच्च स्तर स्मृति कवि मानकर अच्छी प्रमाण पाइले चित्रकार मानकर अच्छी अभिनेता मानकर किछि अच्छी निर्देशक मानकर अच्छी संगीतज्ञ मानकर अच्छी एपरिकी केतेकांशरे वैज्ञानिक मानकर अच्छी दार्शनिक मानकर अच्छी नहेले समान हाँ अच्छी थिंकर मान तो फिलोसफिकल से मानकर भी अच्छी वैज्ञानिक मानकर अच्छी इत्यादि जो माने आउ टिके गभीरता को जानती चिंता स्तर रे चेतना स्तर रे आम सत्तार हाँ केते केते नाना सामग्री को से ग्रहण और लिपिबद्ध करुच्ची आम उपरिभागत स्मृति किछि किछि एमती करुच्ची किंतु संपूर्ण भाव में आमको मार्गदर्शन दे पारु नाही भितर को जीवाको अधिक परिव्याप्त अधिक सृजनक्षम भाव में आम चेतनार जो अधिचेतना प्रतिरूप गठनकारी शक्ति बड़ निपुण भाव में आम भितर कार्य कर चली उपरिभाग में कार्य करुवा कल्पना शक्ति केवल से ही केतोटी प्रतिरूप को साउंटे आणला परी बाहर प्रकाश करुच्ची सतरे किते आम चेतनार गोटे अधिचेतन प्रतिरूप बहुत कथा आम भितर आनी सुजोग दौची आमे सुजोगर सद्व्यवहार करि पारुनु आमे विश्वर जेते सौंदर्य आमे जेतिकी पारिचु देखिचु से सौंदर्य आमको केतेबेले हेले देइछि कि सेमती एक गभीर स्मृति स्रष्टा संपर्क रे देनी कहीं ना सी एते से चाहे ये पांचटा जाक इंद्रिय श्री अरविंद मतरे बाहर को दिया जाइछि ठीक बोली श्री अरविंद कहते ए बाहर को दिया जिबारु एई मानक बाट देई भीतर को आसीबा को सुविधा हबो जदि ये पांचटा जाक इंद्रिय माइनस कर दिया जिवो ताहले भीतर को जमारू सीढ़ी मिलिबो नाही भीतर को तो गोटे पुणी से दरकार अंडरग्राउंड जीवाकू ना नहीं ना डेई पड़िबो सीढ़ी दरकार ये पांचटा जाक इंद्रिय सीढ़ी हवा दरकार किंतु हो ना सुजोग अच्छी अनेक सुजोग अच्छी जीवन रे व्यक्ति जीवन रे अनेक सुजोग आसे ये पंच इंद्रिय को माध्यम करी भीतर को जीवाकू टिके सुविधा पाइबाकू मात्र ताहार सद्व्यवहार मनीष करि पारे नाही कारण अहं ये कथा करेई दिए नाही प्रतिरोध केवल से साउंटी आणला परे बाहर केते टिके एमती प्रकाश करुची कवि भाव रे हो चित्रकर भाव रे हो बा जड़े जहाँ थिंकर्स बा चिंताशील व्यक्ति भाव में हो से टिके टिके आनी दउची किंतु संपूर्ण भाव में भीतर को नहीं जाई पारु नाही अहं छाड़ू नाही कविर भी अहंग अच्छी वैज्ञानिक भी अहंग अच्छी आम अंतर्मनर अपरिमेय विपुलतर और सूक्ष्मतर उपलब्धि मान रही अंतर्मनर बहुत उपलब्धि अच्छी मनर बहुत शक्ति अच्छी बहु कथा जानिबा को अनुभव करने को बेले बेले ता भितरे एमिति सूक्ष्म अनुभव हुए जिसे ताको प्रकाश भी करि पारेनी जदि से अनुभव पाइबा को से चाहू थाए कल्पना शक्ति माध्यम रे भगवान उपस्थिति मध्य से अनुभव करे
जड़े माँ को पचारे माँ मु एते दिन धरी पाठचक्र करुच्ची बही पढ़ुची कहीं मु भगवान को देखी पारुनी। माँ कहले भगवान दृश्यमान वस्तु नुहंती अनुभव्य वस्तु। से देखा जावाई उद्दिष्ट नुहंती किए से अनुभव करी हब लगे किए जड़े अच्छा पाखे अच्छा कल्पना माध्यम करी हब लागिब तांकर वास्तव उपस्थिति लागिब जदि सेमिति कल्पना खूब प्रगाढ़ होइथिबो। इंटरव्यू जाउची मो सांगरे माँ जाउचंती आग गले भितर को तापर मु गली मु बसिली मो पाखे बसचंती हाँ बसचंती अनुभवर कथा ऑफिसर पाख जाउची फाइलटा अप्रूव करा जीवो ऑफिसर व्यस्त हुए तो थाई पारंती किंतु माँ जाउछंती तांको व्यस्तता कमी देवे एवं मो कार्यटा सुखरूप व्यक्तिगत स्वार्थ कथा पड़ेनि मो ठीक भाव कामटा हम डाक्तर पाक जाउची माँ मो सांगे जाउछंती मु डाक्तर पाखे बसिली माँ मध्य बसचंती डाक्तर भितर माँ अच्छंती सी ही लेखुंट सी ही भावुंट कितनी बड़ बड़ कथा कितनी बड़ कथा ए कथा शुणिबार सुजोग समस्त की मिलबनी मिलवा बोध हुए उचित नुहे कारण यह एते साधारण सामान्य कथा नुहे बहुत गभीरतार कथा। प्रभु जहाँ लिखिछंती मनस्तत्वर गभीरतम गभीरतार कथा लिखिछंती। तेणु बृहत्तर आम अंतर्गत प्राणशक्तिर एक बृहत्तर गतिशीलतार सामर्थ्य रही प्राणर भी सेमती सामर्थ्य अच्छी आम भितर अवस्थित सूक्ष्म भौतिक उपादान एक सूक्ष्मतर बृहत्तर ग्रहणशीलता रही जो सूक्ष्म भौतिक उपादान सफ्टल फिजिकाल जो गुड़ाक धर अंतर्मन अंतर्प्राण सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म मन ये सब आम भितर अच्छी जो माने ये सब उपलब्धि आणती शरीरर गोटे अनुभव अच्छी सुस्थता तार भवितव्य सब से सुस्थ रहा चाहे फल सी मन को मन केते कांशरे निजक निजे सुस्थ करदेव तार से सामर्थ्य अच्छी केते कांशरे औषध दरकार पड़ पारे कि तार मध्य निजर गोटे ग्रहणशीलता सामर्थ्य अच्छी। तेणु गोटे सूक्ष्म शरीर जदि न था ताहले से ए स्थूल शरीर रे थिबा असुविधा को सजाड़ी दे पारंता नहीं। सेमतिका मन भांगी पड़ी हताश रे दुख रे पुणी किए ताकू सजाड़ुची से किए अंत सूक्ष्म मन ताकू साहस दौची ताकू सांत्वना दौची। ए बाहर सांत्वना किछि नुहे से भितरू जितेबाला सांत्वना पाइब से दंभ हम बाहर जो आहा 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 से आहरी ताकू विव्रत कर अपना भितर गला यही सब गोपन क्रियाशीलतार पछरे एक चैत्य सत्ता अवस्था रही अर्थ स्थूल मन स्थूल प्राण सूक्ष्म प्राण स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर र पश्चात अच्छी चैत्य सत्ता। यही सूक्ष्म कथा मान अधिचेतन स्मृति माध्यम स्थूल सत्ता मानक सहित जोड़ी दियंती चैत्य सत्ता किंतु अहं ये जोड़ीबा काम गुड़ा सब काटी दउछि जोड़े दौ नाही चैत्य सत्ता सहित जोड़े दौ नाही मन प्राण शरीर को आ मन प्राण शरीर डायरेक्ट जोड़ी हेबेनी तार गोटे सूक्ष्म अच्छी चैत्य सत्ता सूक्ष्म मन माध्यम स्थूल मन प्रकटित हम चैत्य सत्ता सूक्ष्म प्राण द्वारा स्थूल प्राण रे प्रकटित हम सूक्ष्म प्राण पर्यंत मध्य छाड़ी दौ नाही
किए अहं छाड़ी दौना यही सब गोपन जहाँकि आम व्यक्तित्व बोधर यथार्थ आश्रय रूपे कार्य करुच्छे प्रकृत आमको धरी रखी से सूक्ष्म ए चैत्य सत्ता सूक्ष्म सत्ता आमे जहाँ को अहं बोली कहूँ ताहा हेउछि से अंतर्गत व्यक्तित्वर एक बहिश्चर बहिर्मुख मिथ्या विकल्प मात्र पुणी कहिले जे अहं आमको लगुच बड़ अदरकारी काले आमे से कथा भाविबू बोली श्री अरविंद आउ टिके बुझेई देले जे ना ना अहं सेते अदरकारी नुहे किंतु जेते दरकारी बोली आमे भाबुचु ताहा मध्य नुहे ताल से कौन ना अंतर्गत व्यक्तित्वर एक बहिश्चर बहिर्मुखी मिथ्या विकल्प मात्र प्रतिटी शब्द ना गोटे गोटे पाराग्राफ हम बुझेले प्रतिटी शब्द कहले आमर गोटे अंतर्गत व्यक्तित्व अच्छी जहाँ चैत्य सत्ता द्वारा गठित जहाँ सूक्ष्म मन सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म शरीर द्वारा गठित से अंतर्गत व्यक्तित्व ये हूँ गोटे बाहर अहंटा गोटे बाहर मिथ्या मिथ्या माने मिछ नुहे मिथ्या माने जोटा हूँ प्रकृत चलचंचल परिवर्तनशील जहाँ को परिवर्तन करहब धर सत्यटा परिवर्तन करहब नहीं सत्य कहले सत कथा नुहे दि सुप्रीम ब्रह्म दि ट्रुथ सेटा केबे परिवर्तन हुए नहीं कि हब नहीं मनीष भेदर हेनी समय भेद हेनी अथ पृथ्वीर आरंभ जो ब्रह्म जेमिति थिले आज भी सेमिति अच्छे रहिबे किंतु बदलिब किए से ना ए अहं बदलिब अहंटा बदलिबा कथा अहं सब बदलुची तेणु सीए जो जो दिग्दर्शन दौची सी मध्य से दिग्दर्शन से बदली बदली जा दिग्दर्शन दौची हेले से गोटे विकल्प ठीकटा नुह मैं तार गोटे माने वस्त्र अभाव से तार गोटे विकल्प से नुहे अर्थ से विकल्प माध्यम रे सकल्प को जाई हब विकल्प को विकल्प बोली भाबी फिंगिदेले हेनी कारण ए दिव्य जीवन ग्रंथ अन्यत्र प्रभु लिखिछन्ति जे अहं कौन ना अहं होची सेल्फ कॉन्शियसनेस रो विकल्प सेल्फ कॉन्शियसनेस रो गोटे विकृत रूप आत्मचेतनार सीमित क्षीण एवं विकृत रूप हो जाइछि अहं सीए पुणी रूपांतरित हो पारिबो आत्मचेतनार कारण ताहा आत्मचेतनार क्षीण छाया जेमिति पूर्णिमा जह्नर क्षीण क्षीण अभिव्यक्तिटे होउछि अमावास्या सेमती से अमावास्या ही पूर्णिमा रे परिणत हब सेहीपरि अहं ही आत्मचेतना रे रूपांतरित हब तेणु अहंर विनाश हबनी श्री अरविंद कहले जे अहंर रूपांतर हब कौथरे सेल्फ कॉन्शियसनेस कारण से अंतरस्थ गूढ़ आत्मा ही आमर जावतीय आत्मा अनुभव और विश्व अनुभव के एकाठी धरी रखी आमर जो भीतर आत्मा सी ए बाहर भीतर ए सबू कथा को धरी रखी अर्थ आमको भीतर भी धरी रखी बाहर भी धरी रखी आमको गछ को भीतर भी रखी बाहर भी रखी प्राणी को भीतर भी धरी रखी बाहर भी धरी ना पहाड़ को भीतर भी धरी रखी तार भी गोटे आत्मा अच्छी कहार ताकू भी धरी रखी भीतर बाहर मध्य
आम देह प्राण और मनर बाह्य क्षेत्र में विचरण कर अहंटी केवल आम बाह्य प्रकृति द्वारा गठित एक बाह्य वस्तु मात्र। चैत्य सत्ता आमको भितर बाहर अर्थ आम सूक्ष्म मन सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म शरीर को से धरी रखी आमको एते एते दुर्घटनारू विपदरू असुविधारू असंतोषरू व्यथारू वेदनारू किए से रक्षा करुछि? चैत्य सत्ता सी ही प्रकृत रे आमको बंचे रखिछंती एवं आमको से सबु बेले सुरक्षित करी रखिछंती। ताले केउठो आसुची ये दुख विपद अशांति असंतोष कोठो आसुची? बाहर आसुची। को बाट दे आसुची? अहंग बाट दे आसुची। कारण अहंग होची आम बाहरर सत्ता, से भितरर नुहे। देहर अहंग प्राणर अहंग मनर अहंग बाहरे बाहरे। आमे जेतेबेले आमर आत्मा और आमर प्रकृति उभय को संपूर्ण अखंड रूपे जानिबा को समर्थ हवा अर्थ आमे बाहर और भितर एक बोली जानी पारिबा। गछ को भगवानंकर गोटे सेप माने आकार बोली बुझी पारिबा। पहाड़ को जदि भगवानंकर एक रूप बोली बुझी देखी पारे अनुभव करि पारे देखिबा कौन अनुभव करि पारिबा सेतिके बेले जाई समर्थ हवा आमे दीटा जाय कथा तले एक करि पारिबा तार गभीर को भेद करि पारिबा और तार उपरि भाग रे मध्ये तार सत्य परिचय पाई पारिबा। ऊपर तांकु देख ऊपर भी उपलब्धि हबो डिवाइन कर भीतर भी उपलब्धि हबो अर्थ आम शरीर रे भी उपलब्धि हबो दिव्य शरीर हबो। बाबाजी महाराज कहले मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति शरीर भी भगवत प्राप्ति शरीर बाहर भगवत प्राप्ति हबो माने ये जो स्थूल शरीर रे सूक्ष्म शरीर रे मध्य भगवत प्राप्ति हबो। स्थूल प्राण सूक्ष्म मन ये सबुतिर भगवत प्राप्ति सेहीपरि बाहर मध्य वर्तमान प्रकृति जमी आमको दिशुची सेम दिशबनी आहरी जीवंत आहरी जाग्रत आहरी ता भितर डिवाइन कर रूपरेख झलसी उठिब गभीर को भेद तारी ऊपर भाग में सत्य परिचय सेतिकी बेले जाई आम एक यथार्थ ज्ञान भूमिर अधिकारी हो पारे। सेते पर्यंत अज्ञानता अच्छी सेते बेले प्रकृत रे ज्ञान आसीबो केतेबेले ना जेतेबेले ए मु भावटा चली जाई तुमेरे परिणत हो भगवान रे परिणत हो सेतिके बेले ए मु आ वर्तमान जो मु होकरी रहिबो नाही। श्रीरामकृष्ण कथार वर्तमान मु हूँ कंचा मु सी हो पाचिला मु कंचा आंब आ पाचिला आंब आंबुटा किंतु कंचा आंब आ पाचिला आंब कौन समान से आंबटा पाचुची ना नहीं तेणु कंचा मु को पाचिला मुरे परिणत करिबा होची जीवनर लक्ष्य। श्रीरामकृष्ण पुणी बुझाई देले ये पाचिब केमिति ना पाकल हेले कौन कसी आंबटा पाचिब नाई पाकल हेले पाचिब पाकल हब केमिति ना से बाटटा होची जे कंचा मु जेतेबेले बुझी पारिबो जे मु भगवानंकर दास मु भगवानंकर भगवान मोर प्रभु मु तांकर सेवक यही हूँ माध्यम एटा पाकल हम तापरे तांको सहित गोटे एकात्मता बोध आसीब केते भागरे पाकल हो पारे दास्य भाव हो पारे सख्य भाव हो पारे बात्सल्य भाव हो पारे केते बागरे सेटा पाकल हम नहेले ये कच्चाटा सांगे सांगे पाची जीव नाही। अतएव आजिर जो पाठ से पाठ है
ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅହଂର ରାଜତ୍ୱ, ଅହଂ ଯେତେ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ। ତାହା ଆତ୍ମଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଆତ୍ମଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ବାହାର ଭିତର ଏକାକାର ହେବ। ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ବହିର୍ଜୀବନର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିବ। ସେତେବେଳେ ଅସଲ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ। ସେତିକିବେଳେ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ମୃତି, ଅହଂ ଆଉ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି। ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅହଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅହଂକୁ ଆମେ ପାଥେୟ କରି, ମାଧ୍ୟମ କରି ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ମାତ୍ର ତା'ର ସଦବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ତା'ର ସଦବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସନ୍ତା। ସେତିକି ବେଳେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସନ୍ତା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।